We have discussed what are the objectives of doing these international trade theory. Then we have discussed mercantilist theory, Adam Smith absolute cost advantage theory, and the various criticism or the point wherein we cannot use absolute cost advantage theory. Then David Ricardo provided an updated theory and tried to remove all the criticisms that were there in the Adam Smith's absolute cost advantage theory. So Adam Smith provided, David Ricardo provided the comparative cost advantage theory, wherein we have discussed that how if one country is having absolute advantage in both the commodities, even then the trade can be beneficial. So ये जो भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया था वो हमने सब commodities के aspect से किया था. The last topic associated with the law of comparative cost advantage theory is comparative advantage with money. अच्छा मैं पूछना भूल गई, am I properly audible, visible and the screen is properly visible? Please confirm. Yes, ma'am. Okay, thank you. So this is comparative advantage with money. इसमें सिर्फ 3 केसेस हैं, वो 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे. सो अगर हम ये बोल रहे हैं जो हम लोगों ने कल टेबल डिस्कस किया था कि यूएस का कंपैरेटिव एडवांटेज वीट में लाई करता है, इसका मतलब अगर हमने सिर्फ एक ही फैक्टर लिया है, हमारा अजम्पशन क्या है 2/2/1 मॉडल. पहले मैं आपको समझा रही हूँ ऊपर से लेमन टर्म्स में, देन आई राइट डाउन एवरीथिंग. सो अगर हम ये बोल रहे हैं कि यूएस का कंपैरेटिव एडवांटेज वीट में लाई करता है, इट मीन्स कि वहां का जो लेबर है विच इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज मोर एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट. And if it is more efficient in the production of wheat, it actually means Ravi is joining. Wait, it actually means that the labor is cheap. The labor will be cheaper in US as compared to UK for the production of wheat. So if the labor will be cheaper in US, that means that the price of wheat will also be cheaper in US as compared to the price of wheat in UK. And it is vice versa when we discuss the commodity cloth. तो जब भी हम लोग, कल मैंने आपको रेंज बताया था कमोडिटी की टर्म्स में और एक छोटा सा एग्जांपल दिया था प्राइस की टर्म्स में, पर जब भी हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड में प्राइस की बात करते हैं तो वहां पे हमारा एक्सचेंज रेट भी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि यूएस में हमारा डॉलर की टर्म्स में प्राइस होएगा और यूके में हमारा पाउंड की टर्म्स में प्राइस होएगा. Therefore, we first have to convert this price into one single currency using the exchange rate to understand the difference between these prices. And then the countries will decide कि उनको कितना export करना है, कितना import करना है, trade करना है या trade नहीं करना है. तो अब जो हम 3 cases लेने वाले हैं, उन 3 केस में हम different exchange rate देके, different exchange rate लेके we will try to analyze that when the trade will be balanced, when the trade will be in favor of UK and when will the trade be in favor of US. This is what we are going to do today. Is it clear to all? Any problem in layman terms? Objective clear है आज के lecture का? Okay. सो यश, क्योंकि आपने पहले की क्लासेस अटेंड नहीं की है तो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई ट्राई टू एक्सप्लेन साइड बाय साइड कि अगर पहले की नहीं हुई है तो एटलीस्ट आज का टॉपिक समझ आ जाए. अगर कहीं पे प्रॉब्लम लगती है तो एक बार प्लीज आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना. So now when we are saying that both the commodities are, first we will write that both the commodities are measured in terms of currency and the wages in UK will be lower and hence the price will be lower for the commodity cloth and vice versa for US. Then we will assume few prices, we will assume the exchange rate, and then we will see what will be the final trade balance. So we are saying that when both the commodities are measured in terms of currency. अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं ऊपर भी देख रही हूँ चैट सेक्शन में, यू कैन मैसेज, आई विल इमीडिएटली रिजॉल्व योर प्रॉब्लम. सो व्हेन वी आर सेइंग दैट बोथ द कमोडिटीज आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ करेंसी, एंड जब हम ऑलरेडी ये लास्ट टॉपिक से कंटिन्यूड है बोल चुके हैं कि यूएस व्हीट एक्सपोर्ट करेगा एंड यूके क्लॉथ एक्सपोर्ट करेगा. सो व्हाट डू वी मीन टू से, एंड लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू हमारा अजम्पशन है, तो हम क्या बोल रहे हैं, द वेजेस इन यूके
the wages in UK will be lower and hence मतलब क्योंकि wages कम है और वो single factor of production है, hence the price of cloth will be less in UK. And similarly we can say that price of wheat, अब मैं यहाँ पे wages पूरा नहीं लिखूंगी, I'm just writing that price of wheat will be lower in US. जो लास्ट टेबल हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें हमने वीट का प्रोडक्शन पर मैन आवर लिया था और क्लॉथ का प्रोडक्शन भी पर मैन आवर लिया था, तो वो हमारा पर मैन आवर की टर्म्स में था जिसको अब हम प्राइस की टर्म्स में कन्वर्ट किया है एंड वी आर सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू इफ द wages are less in UK then the price will also be less for cloth in UK and vice versa for US in the commodity wheat. Now we are saying suppose that wages in US is say $6 per hour. So this is per hour $6. And हम लोगों ने जो कल टेबल लिया था उसके अकॉर्डिंग in US 1 man hour produces 6 units of wheat and 4 units of cloth. अब हमको ये पता है कि हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है 1 घंटा काम करने से, तो हम रिलेटिव प्राइस निकाल सकते हैं ना कि हम लोगों का रिलेटिव प्राइस ऑफ व्हीट कितना होगा. सो वी विल फाइंड आउट द प्राइस ऑफ व्हीट इन यूएस will be equal to 6 divided by 6, that is $1, and the price of cloth in US will be equal to 6 divided by 4, that is $1.50. That is $1.50. So this is how we have calculated the price of wheat and the price of cloth in US using the price or wage of labor. And this is what we mean by labor theory of value. जो भी हमारा वैल्यू आ रहा है अल्टीमेटली गुड का वो लेबर से ही डिटरमिन होके आ रहा है. एक बार आप जो है ये उसको लिख लो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो. सो आयुषी, गुंचा, यश, कुणाल एंड अदर्स, राज, क्या आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ आ गई है कि हमने रिलेटिव प्राइस कैसे निकाला है और क्यों निकाला है? Can you explain it again? Which part? Ma'am, the last part, like why have you divided 6 upon 6 and why have you divided 6 Because by we are 4? trying to find out how much value of generation in terms of price is contributed by the labor. हम ये निकाल रहे हैं कि लेबर 1 घंटे में कितना वैल्यू एडिशन प्राइस की टर्म्स में कर रहा है. अभी जो हमने ये ऊपर यहाँ लिया है 6 यूनिट्स ऑफ व्हीट एंड 4 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ, ये तो यूनिट्स की टर्म्स में है. व्हीट इज इन बुशल्स एंड दिस क्लॉथ इज इन यार्ड्स. पर हमें अल्टीमेटली तो वैल्यू देखना है ना. जीडीपी में हम क्या लेते हैं? वैल्यू लेते हैं. व्हाट इज द वैल्यू? तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं कि हमारा लेबर 1 घंटे में काम करके कितना वैल्यू का प्रोडक्शन कर रहा है, taking into account his wages. All right, ma'am, got it. आयुषी, समझ आया? Is it processed or is it still processing? मैम मतलब ये तो ये शो कर रहा है ना कि यूके के टर्म्स यूएस और यूके इन टर्म्स ऑफ क्लॉथ आई गेस नहीं वो वीट आई गेस इक्वल प्रोडक्शन करता है रिलेटिव अगर ले रहे हैं. और क्या होता है क्लॉथ के टर्म्स में यूएस 1.5 टाइम्स ज्यादा है अगर रिलेटिव टर्म्स. अभी तो हमने यूके का लिया ही नहीं है यश. आपने पहले वाली क्लास तो अटेंड ही नहीं की है, आपको क्या पता वहां पे क्या वैल्यूज हैं. ये तो मैं यूएस का ही तो लिखा है. wages in US, production by 1 man hour, this is in US. अभी तो यूके का लिखा ही नहीं. अभी तो कंपैरिजन हुआ ही नहीं है. यश कुछ और कह रहे थे क्या? नो मैम, मेरे को लगा कि आप रिलेटिव टर्म्स में उसको लाइक
नहीं नहीं, हमने तो यूके सिर्फ की यहाँ पे प्राइस। ये निकाला है कि अगर 1 घंटा काम करके किसी लेबर को $6 पर आवर मिल रहा है और वो 1 घंटा काम करके 6 यूनिट्स या 6 बुशल्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक्चुअली वैल्यू टर्म्स में वो कितना एडिशन कर रहा है, तो हमने रिलेट वो उसका प्राइस निकाला है हम लोगों ने। एंड यहाँ पे ओके 4 यार्ड्स ऑफ क्लॉथ का निकाला है। सो दिस इज प्राइस ऑफ व्हीट इन this is price of wheat in US and this is price of cloth in US। अब शायद थोड़ा क्लियर हो जाएगा, जब यूके का लिखूंगी तो नीचे ऐसे ही यूके लिख दूंगी। ओके, ओके मैम। प्रोसेस्ड। Bidisha, is it clear to you? Amit? Raj, in that case you have to attend the recordings। मैंने पहले ही बोल दिया था, एक हफ्ते बाद तो सब उड़ जाएगा, एक हफ्ते बाद तो कुछ नहीं समझ आएगा। चलो ओके, सो नाउ आई विल राइट यूके का प्राइस एंड देन वी विल कंपेयर द प्राइसेस टेकिंग इनटू अकाउंट द एक्सचेंज रेट। ऑल राइट, नाउ वील से सपोज wages in UK is £1 per hour। £1 per hour ये यूके का वेज है एंड वी आर सेइंग दैट in 1 man hour the production is 1 unit of wheat and 2 units of cloth। Then we can find out the price of wheat in UK will be 1 divided by 1, it will be, चलो पूरा लिख देती हूँ, कोई नहीं। So the price will be £1 and the price of cloth in UK will be 1 divided by 2, 1 because the wages is there divided by 2, so this will come out to be price of cloth will be 0.5 pounds। So this is price of wheat in UK and this is price of cloth in UK। Are we in a comparable position? क्या हम अभी कंपेयर कर सकते हैं? ओके अमित, क्या हम अभी कंपेयर कर सकते हैं या हमें कुछ और देखने की जरूरत है इसमें? अभी नहीं कंपेयर कर सकते पीयूष? व्हाट डू वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट देन? Exchange rate, yes। So now we will take 3 cases of exchange rate and try to see what happens। So case number 1, suppose we are saying that if exchange rate is such that £1 is equal to $2, £1 is equal to $2, तो हमारा प्राइस ऑफ व्हीट इन यूके कितना हो जाएगा? प्राइस ऑफ व्हीट इन यूके कितना हो जाएगा इफ £1 is equal to $2? मैं वेट कर रही हूँ। Yes, $2 and the price of cloth in UK will be $1। Yeah, so now both the prices are this is the price of wheat and cloth in US in dollar terms and now this is the price of wheat and cloth in UK in dollar terms। Now we are in a comparable position। So now if we see price of wheat in US is $1 whereas the price of wheat in UK is $2। Therefore the price is less in US of wheat and hence US is going to export wheat and UK is going to import wheat। On the other hand, if we compare the prices of cloth in US and UK, we can see that price of cloth in US is greater as compared to price of cloth in UK। Hence, UK is going to export cloth and US is going to import cloth। वी आर डिस्कसिंग कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। कल हमने कमोडिटीज के टर्म्स में डिस्कस किया था, आज प्राइसेस के टर्म्स में हम ये प्रूव कर रहे हैं कि हमारा एक कंट्री दोनों में भी अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज रखती है तब भी ऐसे कंपेयर करके कंट्रीज ट्रेड करके म्यूचुअली बेनिफिट हो सकती हैं। सो दस आफ्टर कंपेयरिंग दीज टू प्राइसेस we say that there will be export of wheat from US to UK and there will be export of
cloth from UK to US. अभी मुझे इसी केस को थोड़ा और एक्सप्लेन करना है, बट आप पहले लिख लो इसको एंड प्लीज आस्क इफ देयर इज एनी डाउट. इसी केस को थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी, बट प्लीज राइट दिस डाउन, आस्क मी इफ देयर इज एनी डाउट. इफ यू आर डन, प्लीज मैसेज डन और क्लियर और व्हाटएवर, so that I can move on. All right, Ayushi. Okay. Piyush, we are considering three cases of exchange rate because we don't know if pound is greater than dollar, क्योंकि वो तो हमारा exchange rate बताएगा ना. अगर हमारा exchange rate जो मैंने यहाँ पे लिया है 1 pound is equal to $2, अगर मैं उसको 1 pound is equal to 0.1 ले लूँ तो वो ग्रेटर है या नहीं कंपेयर करके वो तो हमको एक्सचेंज रेट लेने के एक्सचेंज रेट जो होगा उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे ना. जैसे कल हम लोगों ने, हाँ बताओ मैम. आई एम सेइंग वो तो assumption हो गई ना, लाइक कि 1 pound is equals to $0.1 or something like that. But तो assumption ही तो ले रहे हैं. We are taking assumption only. We are not relying on the current exchange rate, something like that. No, we are not deriving on the current exchange rate. We are understanding the theory, taking into account different types of exchange rate. All right, ma'am. जैसे हम लोगों ने कल रेंज, कल तो थे आप पीयूष आप क्लास में, जैसे कल हम लोगों ने रेंज निकाला था ना कमोडिटीज की टर्म्स में कि वो 4C लेस देन 6W लेस देन 12C उसके बीच में ही हमारा ट्रेड हो सकता है. उसी तरीके से अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं जैसे जैसे हमारा एक्सचेंज रेट चेंज होएगा वैसे वैसे ट्रेड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, कौन सी कंट्री के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होएगा. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. वी आर नॉट टेकिंग रियल रेट्स, वी आर टेकिंग 3 केसेस. Okay, so now as we can see from here, I'll write this down again जो मैं बोल रही हूँ, बट पहले प्लीज समझ लो. हमारा यूके का लेबर अगर आप कंपेयर करोगे ना, क्लॉथ के केस में देखना, क्लॉथ के केस में प्लीज लुक एट योर स्क्रीन्स. क्लॉथ के केस में जो यूके है वो सिर्फ 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर पा रहा है. UK is able to produce only 2 units of cloth, whereas US can produce 4 units of cloth. तो इसका मतलब कि यूके का जो लेबर है वो क्लॉथ प्रोडक्शन में हाफ प्रोडक्टिव है एज कंपेयर्ड टू द लेबर ऑफ यूएस. उसके बावजूद उसके बावजूद यूएस यूके से इंपोर्ट करेगा क्लॉथ. उसका रीजन ये है क्योंकि यूके का लेबर चीप है, क्योंकि यूके का जो प्राइस अल्टीमेटली आ रहा है क्लॉथ का वो कम है एज कंपेयर्ड टू द प्राइस ऑफ यूएस. So what we are saying is that UK labor, because UK labor is half as productive as US labor in cloth production, but ये जो less efficient और less productiveness है ना, ये compensate हो जा रही है by the lower wages that are given in UK for the labor who is involved in cloth production. तो क्योंकि ये compensate हो जा रहा है जिसकी वजह से US ज्यादा एफिशिएंट होते हुए भी यूके से इंपोर्ट करेगा क्लॉथ को.
इज इट क्लियर? समझ आया है? इवन दो यूएस का लेबर ज्यादा एफिशिएंट है क्लॉथ प्रोडक्शन के अंदर, फिर भी वो यूके से इंपोर्ट करेगा, क्योंकि यूके का जो लेबर प्राइस है वो कॉम्पेंसेट कर रहा है लेस प्रोडक्टिवनेस ऑफ लेबर को. Ma'am, I have a doubt. यस. Ma'am, will that be, if wheat or cloth is cheaper, will that not also depend upon the output that is being produced within an hour? Like that is the efficiency of the labor, because ultimately you're dividing by the output. Like if while calculating the price, I keep the wages in the numerator and then I keep the denominator as the output. So that as higher the denominator is going to be, the lower the price is going to be. यू नो, आई एम सो हैप्पी. आई टेल यू व्हाई. जैसे जैसे हमारी थ्योरी एंड होती जा रही है ना, आप लोग अपने आप ही थ्योरी का क्रिटिसिज्म बता रहे हो जिसके ऊपर नेक्स्ट थ्योरी बेस्ड है. सो व्हाट यू सेड एक्चुअली वाज कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे जो हमारा रिलेटिव प्राइस है वो चेंज होगा. आई थिंक इट वाज श्रेय वाज इट यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस. सो दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, जैसे जैसे हमारा आउटपुट चेंज होएगा वैसे वैसे हमारा रिलेटिव प्राइस चेंज होगा. Yes, ma'am. इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हैं एक तरीके से, कि हम लोगों का जब आउटपुट इंक्रीज करता है तो हम जितना दूसरी कमोडिटी सैक्रिफाइस करेंगे या जो भी करेंगे, वो हम लोगों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंडीशंस हमारी चेंज हो जाती हैं. दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स. यस श्रेय, हमने अजम्पशन लिया था इस थ्योरी में कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशंस. उसमें हम लोगों ने सारी चीजें सेम रखी थी. जो आपका डाउट है ना, आउटपुट इंक्रीज होएगा, वो इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म है. और जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज टर्म्ड एज हैबरलर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, उसके अंदर हम ये वाली चीज कंसीडर करेंगे जो आपने बोली है. Okay, ma'am. So that will be considered over there. अभी हम लोग सब कुछ कांस्टेंट रखते हुए चल रहे हैं. And why I said I am happy because जब हमारा एब्सोल्यूट वाला खत्म होने वाला था तो आयुषी ने एक डाउट पूछा था जिसके बेसिस पे मैंने कहा था वो आगे वाली थ्योरी में आएगा. सो यू गाइज आर प्रोसेसिंग थिंग्स एंड यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग. सो मेरे को वो अच्छा लग रहा है. दैट्स व्हाई आई सेड दैट आई एम हैप्पी. ओके, आई होप फॉर नाउ ये आपको, अभी हम यहाँ पे कांस्टेंट लेके चल रहे हैं श्रेय. सो आई होप दैट इज क्लियर. Yes, ma'am. Thank you. ओके, सो अभी जो मैंने कहा था कि वो कॉम्पेंसेट कर देता है, मैं उसी चीज को लिख रही हूँ सो दैट वी आर इन अ पोजीशन टू कंपेयर ऑल द थ्री केसेस वेरी क्लियरली. इफ यू वांट यू कैन राइट दिस डाउन. सो आई सेड दैट यूके लेबर is half as productive as US labor in cloth production. But this is compensated, as in this less productiveness, this is compensated as UK labor receives only, I think, 1/3 of US labor. अगर हमारा $2 यूएस में मिल रहा है, सो इट मीन्स दैट अगर हम लोगों का $2 यूके में मिल रहा है, सो इट मीन्स कि हम लोगों का $6 यूएस में मिल रहा है. दिस इज व्हाट वी आर सेइंग. सो द लेस प्राइस ऑफ लेबर इज कॉम्पेंसेटिंग द लेस एफिशिएंसी ऑफ लेबर इन यूके, एंड thus we conclude that the price of cloth is less in UK as compared to US. एंड देयरफॉर अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम लोगों का रेंज क्या होना चाहिए, तो जैसे हमने कल रेंज डिस्कस की थी, सो ये जो हमने ऊपर वाला कंक्लूजन दिया है दैट द प्राइस विल ऑलवेज बी लेस इन द केस ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ क्लॉथ विल बी लेस इन द केस ऑफ यूके. तो ये हमारा ऑलवेज ट्रू है इफ द यूके वेज लाइज बिटवीन 1/6 to 1/2. वाई 1/6 to 1/2? क्योंकि अगर हमने बोला है कि यूके का वेज $2 है और यूएस का वेज $6 है, और अगर हम कमोडिटी के टर्म्स में अगेन हम प्राइस, अगर रिलेटिव प्राइस निकालते हैं, तो जब तक जो हमारा रेंज है वो 1/2 और 1/6 के बीच में लाई करेगा, जब तक यूके क्लॉथ को एक्सपोर्ट करेगा. सो श्रेय, यहाँ पे हम ये एज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि जब तक हम लोगों की सारी चीजें कांस्टेंट हैं और इस रेंज में लाई करेगा, जब तक ही यूके एक्सपोर्ट करेगा.
So Okay. we are saying that this is always the case. Wait, this is always the case in as long as UK wage rate is between 1/6 and 1/2 of US wage rate. So this is the first case जहाँ पे हमने 1 pound equal to $2 लिया था. अब हम एक काम करते हैं, 1 pound equal to $1 लेते हैं. Calculations आपको करनी है, ठीक है? मैं सिर्फ लिख रही हूँ. So I'll just write down case 2. So case 2 is, if suppose we are assuming that exchange rate is equal to 1 pound is equal to $1. Now try to find out what is the price of wheat in UK and what is the price of wheat in US. Sorry, price of cloth in UK. Please tell me what will be the prices. Cloth would be 1. Are you sure, Yash? How come cloth will be 1, Yash? So this would be $1 and this would be 0.5. Yes. Yash, क्या प्रॉब्लम हुआ? मैम पुराना प्राइस तो क्लॉथ का 1 था ना, तो अगर $1 इज इक्वल टू 1 पाउंड तो फिर इक्विवेलेंट नहीं होगा. अच्छा सॉरी, पुराना प्राइस कैसे था? पुराना प्राइस तो 0.5 है ना, ये देखो. यस मैम वो 1 से वो कंफ्यूजन हो गया था, मेरे को लगा वो. बाबा नोट्स अच्छे से 0.5 है बनाओ, तो. थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा बोर्ड. क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे बोर्ड रख लिया तो वो क्लियर नहीं होएगा. बड़ा तो हो जाएगा बट वो क्लियर नहीं होएगा. यस मैम मैम थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे देना. अच्छा ठीक है, आप बोल दिया करो, जस्ट मैसेज वेट, आई विल वेट. ओके ओके मैम. ओके. सो फिर हम लोगों का प्राइस ये हो गया. नाउ लेट अस कंपेयर टू द प्राइस ऑफ यूएस. सो प्राइस ऑफ wheat in US was what? $1 and $1 and 1.5. Okay, $1 and price of cloth in US is $1.5. So अब अगर हम इस situation को compare करेंगे, again what we will see is that because of this exchange rate, now the UK wage rate is 1/6 of US wage rate. एंड जो हम लोगों का केस 1 था, केस 1 में हम लोगों का प्राइस ऑफ क्लॉथ इन यूके $1 आ रहा था. केस 1 में प्राइस ऑफ क्लॉथ इन यूके $1 आ रहा था. तो हम लोगों का जो डिफरेंस था बिटवीन द प्राइस ऑफ क्लॉथ इन यूके एंड द प्राइस ऑफ क्लॉथ इन यूएस वो सिर्फ $0.5 था. बट अब क्योंकि हम लोगों का एक्सचेंज रेट चेंज हो गया है, सो इस केस के अंदर जो डिफरेंस है बिटवीन द प्राइस ऑफ क्लॉथ इन यूएस एंड द प्राइस ऑफ क्लॉथ इन यूके, ये डिफरेंस इंक्रीज हो गया है. दिस डिफरेंस इज नाउ $1. सो इस सिनेरियो में ट्रेड किसके फेवर में रहेगा? यूके के फेवर में या यूएस के फेवर में? इस सिनेरियो में ट्रेड किसके फेवर में रहेगा? यूके के फेवर में या यूएस के फेवर में? यस. सो वी विल कंक्लूड. अब मैं ये सारा नहीं लिख रही हूँ. आई होप अब आपको चीजें समझ आने लगी हैं. इफ यू वांट आई विल रिपीट. थोड़े रनिंग नोट्स आप देख लो अगर बन सकते हैं तो. आई जस्ट कंक्लूड दैट ट्रेड विल बी इन फेवर ऑफ यूके. ट्रेड विल बी इन फेवर ऑफ यूके. एंड दस क्योंकि हमारा ट्रेड यूके के फेवर में है, हमने सारी एक्सचेंज रेट की मूवमेंट्स मैक्रो में डिस्कस की हुई हैं. दस वी कैन से दैट द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड पाउंड
will have to rise, will have to increase. That is, हम बोल रहे हैं डॉलर प्राइस ऑफ पाउंड हम लोगों का इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रेड यूके के फेवर में है, यूके का ट्रेड बैलेंस सरप्लस में होएगा, एंड देयरफॉर डॉलर प्राइस ऑफ पाउंड इंक्रीज करेगा. अब मैं पूरा पेज ओपन कर रही हूँ यश, रादर मैं दोनों पेज ओपन कर देती हूँ. अगर कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो. इफ यू वांट टू राइट समथिंग प्लीज राइट. लेट मी नो व्हेन यू आर डन, एंड इफ देयर इज एनीबॉडी हु वांट्स मी टू वेट तो 2 मिनट के बाद वेट का मैसेज कर देना. इसके बाद हमें एक केस और डिस्कस करना है बस. People who are done, please try to find out what if exchange rate becomes 1 pound equal to $3. What if exchange rate becomes 1 pound equal to $3? What will happen? Let me know when you are done. Wheat from US and cloth from UK तो वो तो रहेगा पीयूष, बट ट्रेड किसके फेवर में होएगा? ओके यश, ट्रेड यूएस के फेवर में होएगा. यश आपने सॉल्व किया है या वैसे ही बोल रहे हो? नो मैम, मैंने ऐसे किया क्योंकि अगर उस क्लॉथ का प्राइस हो जाएगा अराउंड आपका, क्योंकि क्लॉथ का प्राइस हो जाएगा वो सेम हो जाएगा, पर नंबर ऑफ यूनिट्स में डिफरेंस हो जाएंगे. यूके 2 कर रहा है और यूएस 4 कर रहा है, तो कॉमन सा बात है कि सर जो ज़्यादा यूनिट प्रोवाइड करेगा उसके बेसिस पे जाना चाहेंगे. ठीक है. और इधर तो आप वेजेस आपके तिगुने हो जाते हैं. हाँ एग्जैक्टली. हाफ यूके के वेज रेट हाफ हो जाते हैं ना. प्राइस बेटा, प्राइस जब हम वेज रेट की बात कर रहे हैं तो हम प्राइस का देखेंगे ना. यस मैम. So मैं बोल रही हूँ थर्ड केस इज दैट इफ एक्सचेंज रेट बिकम्स 1 pound equal to $3. So 1 pound equal to $3 जैसे ही एक्सचेंज रेट हो गया, आप अगर प्राइस की टर्म्स में देखोगे फिर इसको, सो जो यूके का वेज रेट है प्राइस की टर्म्स में, दैट विल बिकम एग्जैक्टली हाफ ऑफ यूएस wage rate, and then the price of cloth in UK becomes, the price of cloth in UK becomes $1.50, and this is exactly same as the price of cloth in US, that is $1.5. So in this case we can say that trade will be unbalanced in favor of US. Trade will be unbalanced in favor of US. And thus in this case exchange rate, that is dollar price of US, dollar price of pound will have to fall. The exchange rate, that is dollar price of pound, will have to reduce because now trade is unbalanced in favor of US. जो हमारी ये एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स होती हैं वो इन्हीं ट्रेड कमोडिटीज क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है. हम लोगों का डिपेंड, ये तो हमने बहुत सिंपल केस लिया है 2x2x1 मॉडल, बट व्हेन देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज which have a role to play in international trade, so the exchange rate will keep on moving upward or downward and will finally settle at a price at a level that will result in balanced trade. लिख दूंगी मैं ये लाइन, बट देखो बैलेंस ट्रेड क्या है? जब तक हम ये बोल रहे हैं कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है,
किसी तरह का गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है इन कमोडिटीज के अंदर। बट रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में तो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी डालते हैं, टैरिफ्स भी डालते हैं, कोटास भी डालते हैं, गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी होते हैं, यूनियंस भी होती हैं जैसे यूरोपियन यूनियन है। ये सारी चीजें हमको करनी है, यूरोपियन यूनियन, ऑल दीज थिंग्स, दिस विल कम अप इन थर्ड यूनिट, टैरिफ्स विल कम अप इन सेकेंड यूनिट। सो अभी हम थ्योरीज को बेस से लेते हुए चल रहे हैं, देन स्लोली वी आर गोइंग टू सी व्हाट हैपेंस व्हेन ऑल दीज थिंग्स कम्स इनटू द पिक्चर। So I said, thus the exchange rate will finally settle at a level that will result in balanced trade. But do not forget, balanced trade means in the absence of any interference और अदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, या अगर हम कोई अपना टैरिफ्स इम्पोज कर रहे हैं या कोटाज इम्पोज कर रहे हैं, सो इन द एब्सेंस ऑफ दीज थिंग्स देयर विल बी कांस्टेंट मूवमेंट इन दी, जैसे जैसे हम लोग वो नहीं, आप माइक्रो में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, यू माइट, आई थिंक यू शुड रिमेंबर दिस लाइन, दैट प्राइसेस प्ले एन इनविजिबल हैंड। प्राइसेस प्ले एंड, ये लाइन याद है आप लोगों को माइक्रो में, प्राइसेस प्ले एन इनविजिबल हैंड। ये भी एडम स्मिथ ने ही बोला है। डू यू गाइस रिमेंबर दिस? याद है? नहीं है? जग रहे हो, सो गए हो? हेलो, you don't remember? Okay. No? All right. See, Adam Smith said that prices play an invisible hand. आपने पढ़ा होगा, याद नहीं होगा probably. So उसमें क्या है, जब हम लोगों का excess supply of goods हो जाता है, prices reduce करते हैं। जब हम लोगों का excess demand of goods हो जाता है, prices increase करते हैं। तो prices की जो movement है, उसको हम बोल रहे हैं कि prices एक invisible hand play करते हैं equilibrium लाने के लिए। जिन भी कंज्यूमर्स को, द कंज्यूमर्स हु आर विलिंग टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर गुड, और जिनका मैक्सिमम विलिंगनेस है एज कंपेयर टू अदर्स, उनको वो गुड मिल जाएगा, एंड सेम फॉर द सप्लायर्स। सो एडम स्मिथ सेड दैट प्राइसेस प्ले एन इनविजिबल हैंड टू गेट द इक्विलिब्रियम इन द सिनेरियो। फिर आपने ये तो पढ़ा ही होगा ना कि जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डिक्रीज होता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, मूव करते रहते हैं जब तक हम इक्विलिब्रियम प्राइस पे ना आ जाएं। इसलिए इक्विलिब्रियम प्राइस को हम मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोलते हैं। एंड उसके बाद फिर आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग। फिर उसके अंदर आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, जो हमारा कंट्रोल्ड प्राइस फ्लोर या कंट्रोल्ड प्राइस सीलिंग होता है, जिसके अंदर कुछ हमारा डेड वेट लॉस अकर हो जाता है। तो वो था कि जब हमारी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो उसके बाद कुछ कंज्यूमर्स जो चाहते हैं वो लेना, वो मार्केट से बाहर चले जाते हैं, सेम फॉर प्रोड्यूसर, समथिंग लाइक दिस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज डेड वेट लॉस इन द इकोनॉमी। याद आ रहा है कुछ? So when there is dead weight loss, there is loss in welfare, social welfare reduces. Are you able to recall? नो? अरे नहीं याद आ रहा तो नो बोल दो, बट कुछ तो रिप्लाई करो। नो। चलो, मैं वो सारी चीजें आपको इसलिए बता रही थी क्योंकि यहाँ पे भी हम वही चीज बोल रहे हैं जो हमारा एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट बिटवीन द प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज, एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू करेंसीज, वो हमारा मूव करता रहेगा जब तक कि हम लोग बैलेंस्ड ट्रेड में ना आ जाएं। जैसे माइक्रो में हम इक्विलिब्रियम सिनेरियो की बात करते हैं, तो मैं वहां से आप लोगों को लिंक करने की कोशिश कर रही थी। फॉरगेट माइक्रो, एक्सचेंज रेट समझ आ गया ना? एक्सचेंज रेट समझ आ गया, आज का टॉपिक समझ आ गया। ओके अमन, विदिशा, देवांश, देवांश आपके रिप्लाईज बहुत कम हो गए हैं। आर यू स्लीपिंग देवांश? यस पीयूष, प्लीज आस्क योर डाउट। Ma'am, in exchange rate, like you've taken the third case also, like £1 is equal to $3. Isn't it like $1 should be something greater than the pound? Like $1 should be so £2 or something like that, because we have taken this case previously, £1 is equal to $2. तो सॉरी, आपका डाउट क्या है कि हमने 2 पाउंड करके क्यों नहीं लिया? मैम आई एम सेइंग कि हमने जो 3 केसेस लिए हैं उसके अंदर एक केस हमारा हायर था, दैट इज £1 is equal to $2. सेकंड वन वाज इक्वल,
Then the third one is also the greater one, like 1 pound is equal to $3. तो आप एक काम करो, फोर्थ केस लेके देख लो, अभी हमारे पास 10 मिनट है, 0.5 लेके देखो एक बार, देखो क्या आता है। मैं एक बार अटेंडेंस लेती हूँ, वी हैव 10 minutes. Ma'am, I think what Piyush is trying to say, I also thought of the same thing, that here you have kept the the pound is a higher currency, like it is much more like the dollar is depreciated in relation to the pound. But what if the dollar is appreciated, like the dollar is the bigger of the currency, like Let's solve. if what if the- Let's solve. Let's solve. ऐसा ये ले ले, Ma'am, what if $1 is equals to 2 pound? कर लो। $1 Yeah, it इज was the इक्वल टू same 2 thing. पाउंड करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 pound इज इक्वल टू $0.5 ही तो होएगा, वही तो लिखा है, Okay, ma'am, okay. ठीक है। सेम ही तो लिखा है। अरे अभी आप अगर ये बोल रहे हो हम किसकी टर्म्स में हम प्राइस ले रहे हैं, बेसिकली आप बोल रहे हो कि 2 pound इज इक्वल टू समथिंग, क्यों नहीं लिया? सो ले लो। अगर हम लोग बोल रहे हैं $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, आप 1 रुपी इज इक्वल टू डॉलर्स के टर्म्स में ले लो। जस्ट सॉल्व दिस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसको सॉल्व करो, देखो क्या होता है। वही तो लिया है, 2 pounds इज इक्वल टू $1 वाला ही लिया है। In the meantime, I'll take attendance till the time you are doing this, because some people have next class also. Then we'll discuss this. Don't leave after attendance. Let's just discuss this fourth case. So today is 8th. All right, guys, I'll be on leave on next Friday. So next Friday, we won't be having class. Avirnav, Yuvraj. Okay, all the people who are thinking कि attendance के marks नहीं है, बेटा इतना इन लोगों को बोलो, इतना विश्वास करके ना बैठे, लास्ट में फिर attendance के लिए इधर उधर बोलोगे। रितिका, मानवी, सिद्धांत, भव्या, सार्थक, मुदित, मेघना, इशिता। Present, ma'am. Okay, इशिता, tell your friends to wake up. मैं रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करूंगी, कोई आ ही नहीं रहा है क्लास में। Yes, ma'am. साक्षी, आशु. Ashu is also sleeping today. Yesterday he was very much concerned about the behavior of the class. Parth, Sachin, Kunal, Avinash. Present, ma'am. Okay, Avinash. Kashish, Amit. Yes, ma'am. अमित बेटा समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. राज, राज, अच्छा राज को प्लीज कोई बता देना कि उसने एक भी क्लास अटेंड नहीं की है इंटरनेशनल इको की। पता नहीं वो कौन सी दुनिया में है और कह रहा है मैंने सारी की थी अटेंड, फिर एक की थी। अभिषेक, अमन। Present, ma'am. Okay, okay, Aman and Avinash, I have forgotten your faces. मैं एक बार अटेंडेंस ले रही हूँ. If you are comfortable, please switch on your video so you have 2-3 minutes. मैं भूल गई आपका बेटा, please mind मत करना, but I want to recall. गुंचा, Present, ma'am. आयुष, विदिशा, Present, ma'am. यश, Present, ma'am. आर्यन, हर्ष, पार्थ, रिथल, श्रेय. Present, ma'am. Shrey will start with that opportunity cost theory Monday onwards. Yes, ma'am. Okay. Ashwin, Ayushi. Where is Ayushi? Present, ma'am. Okay, Present, Ayushi. ma'am. Present, ma'am. Kabir, Abhishek, Vinay, Sanjana,
रवि। यस मैम। रवि, आज आपके नेटवर्क में बहुत प्रॉब्लम था। यस मैम, वाईफाई नहीं चल रहा था मैम, सुबह से वो बार बार कनेक्शन वो हो जा रहा था। अमन, अंजलि, यशिका, राहुल, अनुराग, पीयूष, Present, ma'am. ओके पीयूष, मुस्कान, देवांश। Present, ma'am. देवांश, आप कहाँ हो? मैसेज नहीं कर रहे हो, एज इन चैट पे रिप्लाई नहीं करते हो। I'll make sure I'll do it. यू आर स्लीपिंग देवांश? No, ma'am. प्रतीक, प्रशांत, ओके दैट्स इट। यस, सो क्या आया इसका आंसर? 0.5 एंड 0.25 मैंने सॉल्व नहीं किया है, बट सबका यही आया है, तो आप देख लो 0.5 and 0.25. Now if we compare this with the price of, since you are saying that price of wheat in UK is what, 0.5, and price of wheat cloth in UK is 0.25. And now we will compare this with the price of wheat in US and the price of cloth in US. So this was, I think, $1.5 and this was $1. So now if we compare this, UK के अंदर तो हमारा दोनों का प्राइस कम हो गया है. So we are landing up in a situation of the exception of comparative cost advantage. हमने कल जो exception डिस्कस किया था, ये हमारा वो एक्सेप्शन वाला केस हो गया है, जहां पे कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज भी यूके का ही ज्यादा आ रहा है दोनों कमोडिटीज के अंदर. या ये एक्सेप्शन वाला केस हो गया है ना. अमन, यश, आप लोगों ने सॉल्व किया है. यश, आपने शायद कल की क्लास तो नहीं अटेंड की होगी, बट अदर्स, इजंट इट द केस ऑफ द एक्सेप्शन? आयुषी, since this was your doubt when we started this theory. Shrey, you were there yesterday, and Piyush was Yes, also ma'am. there yesterday. So isn't it the case of the exception of comparative cost advantage? Exception भूल गए पीयूष? Ma'am, I'm unable to recall कि क्या थी exactly. क्या क्या? Ma'am, I'm unable to recall. You have to recall. अरे एक्सेप्शन कल हमने डिस्कस किया था ना, कि अगर फिर हमने अनलेस वाली लाइन ऐड की थी. एक मिनट रुको, आई जस्ट ओपन. ये था ना, even if one nation has an absolute disadvantage with respect to the other nation, there is still a basis of mutually beneficial trade unless the absolute disadvantage that a nation has with respect to other is in the same proportion for the two commodities. अभी याद आया पीयूष? हमारा कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज भी दोनों कमोडिटीज में है. When the absolute disadvantage that one country has with respect to another country is same in both the commodities. अगर फिर भी ऑप्शन नहीं बचता है हमारे पास, तो जिसमें उसका कंपैरेटिव डिसएडवांटेज कम होएगा, वो कमोडिटी यूएस एक्सपोर्ट करेगी. सो इफ यू गो बैक टू दिस, या दिस थिंग, तो यहाँ पे कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज यूएस का वीट में कम है एज कंपेयर टू कंपैरेटिव कॉस्ट डिसएडवांटेज इन क्लॉथ. कुछ तो रिस्पॉन्ड करो, या समझ नहीं आ रहा है? पीयूष, Ma'am, got it. श्रेय, Got it. Ma'am, got it. Like, so ma'am, इसके अंदर like US का फायदा कैसे हो रहा है? फिर like in the statement you told us, so इसके अंदर नहीं हो रहा ना, मैंने वही तो बोला ना, नहीं हो रहा है. ये एक्सेप्शन का केस है, और फिर भी अगर इनको करना है तो फिर ये देखेंगे कि डिसएडवांटेज इनका कहाँ पे कम है, उस कमोडिटी को ये एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनका जो
ट्रेड फ्रॉम स्पेशलाइजेशन इन वीट होएगा वो क्लॉथ से तो बेटर होएगा एटलीस्ट. Okay, ma'am. Got it. Okay, so that's it for today. Now, if anybody has any doubt or anybody wants to discuss anything, you can join the tutorial class. Yash, I think you would be there. So Yash, at what time are you Yes, planning ma'am. to join? Ma'am, you told me like around 12:30 you. मैंने इसलिए बोला कि वो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा since you have 3 lectures मैम back to आप back. अपना कंफर्टेबल बता दो, मेरा शेड्यूल खाली है. आप अपना बता दो, मेरा लाइक खाली रहेगा. तो 11:30 ज्वाइन कर सकते हो इमीडिएटली Yes, आफ्टर ma'am, I 3 can. लेक्चर्स. Yes, ma'am, I can. ठीक है, तो एक बार फिर हम लोग 11:30 मैं लिंक ट्यूटोरियल का लिंक क्रिएट करके मैं ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगी. इफ एनीबडी हैज डाउट यू कैन प्लीज जॉइन द ट्यूटोरियल क्लास. ओके. Okay guys, take care then. We'll meet on Monday. Bye bye.